السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجرسی شاخ نازک کو تراشوں قلم طوبہ کی رانی کام لاؤں بہادر روشنائی کا سمندر وفور عشق میں اشکوں کا دریا، مگر ممکن نہیں شاہ مدینہ کی کبھی مدحت سرائی ہو مکمل، بہت صورت ہمیں تسلیم کرنا ہی پڑے گا بزرگ و بالا تر کوئی اگر ہے خدا کے بعد تو ہیں وہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور سے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، خود جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ جان میں آتی ہے جان نبی کہنے سے، مشکلیں ہوتی ہیں آسان نبی کہنے سے، یا نبی کہہ کے ذرا دیکھیے کون ہوتا ہے پریشان نبی کہنے سے۔ وجد میں آ گیا ایمان نبی بولتے ہیں، کفر ہے چاک گریبان نبی بولتے ہیں، فصحا آئیں فصاحت کی بلائیں لے لیں، مر مٹے سارے زبادان نبی بولتے ہیں۔ کل میں صوت و سخن مار رہا ہے ٹھانکیں، مانگ لو لول وہ مرجان نبی بولتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے کی رحمتیں برکتیں سعادتیں حاصل کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر موبائل نہیں لگائیں تو تھوڑا سا نیچے کر دیجیے نا، موبائل نہیں لگائیں تب درود شریف کو حفظ جاں بنا لیجیے۔ وہ کر لوں گا، موبائل جب لگائیے گا تو ویسے اوپر بہت کر چکا ہوں دوست، ہم اٹھوانی کو اپنی جنس پہ کائنات کے تمام تر نعمتوں سے سرفرازیت کی سند حاصل کرنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ آپ درود شریف ہمیشہ پڑھا کریں، سوتے جاگتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے درود شریف پڑھا کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے کے بعد اللہ توفیق دے تو اپنے انگوٹھوں کو چوم لیا کیجیے۔ جو لوگ درود شریف پڑھنے کے بعد انگوٹھا چومتے ہیں کل قیامت کے دن وہ لوگ میرے آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے۔ قلندر لاہوری شاعر مشرق علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ بہت سارے لوگ درود شریف پڑھنے کے بعد انگوٹھا چومتے ہیں، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو علامہ اقبال نے کہا کہ جو لوگ درود شریف پڑھنے کے بعد انگوٹھا چومتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے قدموں کو چوم لوں۔ قدم قدم پہ خدا کی مدد پہنچتی ہے، درود سے میرے دل کو رسد پہنچتی ہے، یا آسماں بھی وہاں پہ پہنچ نہیں سکتا جہاں پہ آپ کے قدموں کی حد پہنچتی ہے۔ پھر سے ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ چاند کی طرح حسین، ہلال کی طرح مہین، بچوں کے مسکراہٹ کی طرح روشن، ماں کے مقدس آنچل کی طرح دلکش، نمازیوں کے پیشانیوں کی طرح نور، زکوٰۃ ادا کیے ہوئے مسلمانوں کی طرح یہ خوبصورت مجمع ہماری نظروں کے سامنے موجود ہے۔ ہوا چھڑکتی ہوئی کچھ ارقی آتی ہے، ہر ایک مقام سے آواز حق ہی آتی ہے۔ مارٹن لوتھر نے کہا تھا کہ تم اڑو، اڑ نہیں سکتے ہو تو دوڑو، دوڑ نہیں سکتے ہو تو چلو، چل نہیں سکتے ہو تو رینگتے رہو، مگر آگے کی طرف بڑھتے رہو۔ اگر راستے میں کنکر یا پتھر ہے تو اچھا جوتا پہن کر سفر طے کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر جوتے میں کنکر یا پتھر ہے تو اچھے راستے پر چلنا بھی دشوار ہو جائے گا۔ مولا کائنات حضرت علی فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں سب سے زیادہ طاقتور چیز اس کی روح ہوا کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو روحانی طور پہ مضبوط ہونا چاہیے، چاہے وہ تاکہ وہ باہری پریشانیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ صرف ہم جلسے کو جلسہ نہیں سمجھتے ہیں، جلسے کو روحانی اسپتال سمجھتے ہیں جہاں روحانیت کا علاج کیا جاتا ہے۔ جلسہ دلوں پہ چڑھی ہوئی غم کی پرچھائیوں کو اتارتا ہے، جلسہ زندگی کی تمام تر حرارتوں کو سمیٹ کر عشق رسول کی گرمی کا تحفہ لازوال عطا کرتا ہے۔ جلسہ نگار خانہ خیال میں چراغ روشن کرتا ہے، ایسا چراغ جسے نہ بدتمیز آندیاں بجھا سکتی ہیں نہ ہی سرفری ہوائیں بجھا سکتی ہیں۔ چراغوں کے سفر میں دبدبا ہو آندھیوں کا تو پھر انجام ظلمت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا نفرتوں کی آخری اسٹیج پہ ہے، علاج اس کا محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب جلسوں کی ضرورت نہیں ہے، اب اس قدر بھیڑ بھاڑ اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو یوٹیوب کا زمانہ ہے، فیس بک کا ترانہ ہے، اب تو کر لو دنیا مٹھی میں، اسی پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ مگر شاید ان لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ تسلیوں کے ہلکورے سے درد کی شدت میں کمی نہیں آتی ہے۔
दवा कभी मौत का इलाज नहीं हो सकती है। तिनके ने कभी डूबने वाले को नहीं बचाया। व्हाट्सएप से हासिल किया हुआ इल्म बहुत दिनों तक नहीं टिकता है। जलसों की कल भी जरूरत थी, जलसों की आज भी जरूरत है, जलसों की कल भी जरूरत रहेगी, इसलिए कि जलसा तो रूहानी ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के बगैर सांस भी लेना मुश्किल हो जाएगा। वो जिनकी अक्ल है खाली जमीन तक महदूद, वो आसमानों के ऊपर के राज क्या जाने। जहां पे पहुंचा है बुर्राक चंद लम्हों में, बुलंदियां वो तुम्हारे जहाज क्या जाने, बुलंदियां वो तुम्हारे जहाज क्या जाने। इसलिए हम गुजारिश करेंगे मेरे भाई, जलसे को फैशन मत बनाइए, जलसे को मिशन बनाइए, जलसे को तहरीक बनाइए, जलसे को पैगाम अमल की जगह बनाइए। देखिए कामयाबी उनकी पैरवी करने में नहीं है जो लोग चांद पे चले गए, कामयाबी तो उनकी पैरवी करने में है जिनके इशारे पर चांद दो टुकड़े हो गया है। इसलिए हम आपसे गुजारिश करेंगे क्या ये बहुत ही मोहब्बत के साथ आप हमसे जुड़ने के लिए तैयार हो जाएं। जितने लोग बैठे हुए हैं उससे ज्यादा लोग खड़े हैं, और जितने लोग खड़े हैं उससे ज्यादा लोग रास्ते में हैं, जितने लोग रास्ते में हैं उससे ज्यादा लोग घरों में हैं, जितने लोग घरों में हैं उससे ज्यादा लोग कब्रिस्तान में हैं। एक दो जख्म नहीं सारा बदन छलनी है, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। जो लोग खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि बैठ जाएं, जो लोग दूर हैं उनसे गुजारिश है करीब आ जाएं, जो फासले में हैं उनसे गुजारिश है फैसले में आ जाएं, जो अंधेरे में हैं उनसे गुजारिश है उजाले में आ जाएं। नहीं, सोहबत बड़ी चीज है, सोहबत बड़ी चीज है। असहाबे कहफ की सोहबत में कुत्ता आया तो वो भी पाक हो गया। हज़रत जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं फासिक और गुमराह के साथ बैठोगे तो गुनाहों पर दिलेर हो जाओगे, बादशाहों के साथ बैठोगे तो तकब्बुर सीखोगे, बच्चों के साथ बैठोगे तो गैर संजीदा हो जाओगे। तुम आलिमों के साथ बैठा करो, फकीरों के साथ बैठा करो ताकि तुम दीन सीखो, इस्लाम सीखो, शरीयत सीखो, अदब सीखो, इश्क़ रसूल के आदाब सीखो। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि जो भाई हमारे खड़े हैं वो बैठ जाएं, और अगर बैठने में आपकी हैसियत कम हो जा रही है तो उतनी हैसियत क़यामत के दिन इन उलमाए कराम से आप ले लीजिएगा। बैठने से, जमीन पर बैठने से आदमी की हैसियत कम नहीं होती है, उसका मर्तबा बढ़ जाया करता है। हजरत अली मौलाए कायनात से लोग पूछते थे कि हजरत आप हमेशा जमीन पर क्यों बैठते हैं, तो हजरत अली फरमाया करते थे कि जमीन पर बैठने वाला कभी गिरता नहीं है। बैठने वाला आदमी गिर सकता है, सोफे पे बैठने वाला आदमी गिर सकता है, तख्त पे बैठने वाला आदमी गिर सकता है, लेकिन जो जमीन पर बैठता है वो कभी नहीं गिरता है। खाक सारी की चमक से कहकशा हो जाओगे, खुद को तुम रखो जमीन पर आसमां हो जाओ। जो लोग खड़े हैं हम उनसे गुजारिश करेंगे कि बैठ जाइए, जितनी जल्द हो सके बैठ जाइए। ये तो बहुत मर्दुम खेज और बहुत जरखेज इलाका है मेरे भाई, और मुझे मालूम है कि जहां से गुलाब का पौधा उगता है वहां की मिट्टी से भी खुशबू आने लगती है। छोड़ूंगा तुम्हारा, बेदम हूँ मगर साथ ना छोड़ूंगा तुम्हारा, तुम लोग मुसाफिर हो तो मैं गर्दे सफर हूँ। आइए हम सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नकीब आज़म हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे अजीज भाई जनाब नियाज अहमद रज़वी मरी नूर पे जलवाबार हैं, मेरे भाई हजरत ख्वाजा शब्बीर साहब हैं, और हिंदुस्तान का वो इकलौता यक्ताए रोजगार शायर बैठा हुआ है जनाब दिलबर शाही। उसके बारे में हमेशा हम यही कहते हैं कि दिलबर शाही उस हलाल शराब का नाम है कि जिसका नशा अगर एक बार चढ़ जाए तो बड़ी मुश्किल से उतरता है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो तशरीफ आएंगे। जो लोग सुनने के लिए तैयार हैं, हमारी मोहब्बत में नहीं, हमारी मोहब्बत में क्या रखा है, जरा एक बार अपने नबी की मोहब्बत में बोल दे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह जिनके पास हाथ है जरा अपने हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह, और मोहब्बत के साथ बोल दे सुभान अल्लाह। जिस स्टेज पे बैठे हुए हम अपने बुजुर्गों से कतई नजर अपने भाइयों से गुजारिश करेंगे जो मेरे छोटे भाई की तरह से हैं, कुछ लोग तो हमारे बच्चे की तरह से बैठे हुए हैं, तो थोड़ी सी आपकी अगर तवज्जो हो जाएगी तो इंशाअल्लाह मुझे हौसला मिल जाएगा। अहले स्टेज अगर चाहे तो जर्रे को सूरज बना सकते हैं। वैसे हम कोई बहुत पढ़ा लिखा इंसान नहीं है, मेरा अदब में वही मकाम है जो रमजान शरीफ के महीने में सेहरी जगाने वाले का होता है, या फिर सड़क पे पड़े हुए जख्मी हालत में एक मुसाफिर को अस्पताल पहुंचाने वाले का होता है। अब इसके बावजूद अगर कोई भाषा को हरियल समझ ले तो इसमें शिकारी का क्या कसूर। अब अगर कोई पागल को दानिश्वर समझ ले तो इसमें यूनिवर्सिटी का क्या कसूर। अब कोई अगर हर शेर पढ़ने वाले को शायर समझ ले तो इसमें शायरी का क्या कसूर। अब अगर कोई मुसलमान को दहशतगर्द समझ ले तो इसमें इस्लाम का क्या कसूर। नारा नारा है, अरे कोई हर हाथ की खुशबू आती है, सांसों से लोबान की खुशबू आती है, बातों से रिहान की खुशबू आती है। भारत से हम
की खुशबू आती है, हमसे हिंदुस्तान की खुशबू आती है। तो जो लोग अपने हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं, जरा एक बार ख्वाजा के हिंदुस्तान में जरा दोनों हाथों को उठाकर बोलते सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, जरा मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। जरा ये खुफ्तगी सुस्तगी सरासिनगी और बेचारी का माहौल खत्म हो जाए, जरा एक बार बारफ्तगी वाशफ्तगी शगुफ्तगी और शेफ्तगी के माहौल में आ जाइए, जरा मुस्कुराते हुए रहिए। तो वैसे भी अफ्रीकी कहावत है दिलबर भाई कि जो अफ्रीकी कहावत है कि मुस्कुराने से खून बढ़ता है, उदास रहने से नाखून बढ़ता है? तो नाखून क्यों बढ़ाइएगा, जरा खून ही बढ़ा लीजिए आप जब से में आए हुए हैं तो, है कि नहीं? जरा मोहब्बत के साथ बोलिएगा। 2 से 3 शेर हम पढ़ेंगे और आपको मालूम होना चाहिए मेरे भाई जनाब दिलबर शाही को मालूम है कि जब मुझे अच्छे शेरों की दात मिलती है तो मुझको ऐसे खुशी होती है जैसे अफ्तार के वक्त का इंतजार करता हुआ बच्चा मस्जिद के माइक की सुबुगाहट पर खुश होता है। वरना मुझे मालूम है कि बुलंदी से गिद्ध दाना देखता है, उकाब निशाना देखता है, इंसान घराना देखता है, कबूतर ठिकाना देखता है, शायर नजराना देखता है। तो मुझे आपकी तवज्जो चाहिए, जो लोग बैठे हुए हैं सुनने के लिए नबी की मोहब्बत में, जरा एक बार और मोहब्बत के साथ बोल दे सुभान अल्लाह। खुदा चाहे तो हर जुगनू रुखे महताब हो जाए, खुदा चाहे तो हर जुगनू रुखे महताब हो जाए, हर एक कौवा कबूतर फाख्ता सुल्खाब हो जाए, उसी की बख्शिशों से खेतियां जरखेज होती हैं। खुदा चाहे तो राजस्थान भी पंजाब हो जाए, खुदा चाहे राजस्थान भी पंजाब हो जाए। अब एक नात का शेर पढ़ते हैं, इतने लोग बैठे हुए हैं माशाअल्लाह, इतना शानदार, इतना सिलेक्टेड, इतना मुनज़्ज़म, इतना खूबसूरत मजमा बैठा हुआ है। ये है कि आप नात का शेर किस तरह से सुनते हैं। एक शेर पढ़ते हैं कि मरीज़े इश्क को खाके शिफा तकसीम करता है। मरीज़े इश्क को अगर स्टेज वाले बोले तो आपको भी बोलना चाहिए, है कि नहीं? मोहब्बत के साथ बोलिए, और आपको तो बोलना ही चाहिए। ये तो हिंदुस्तान है, यहाँ तो दीवारों पे लिख के बताया जाता है कि दीवारों पर लिखना मना है कि नहीं? इस एतबार से अगर मुझे देखे तो हम बहुत छोटा नजर नहीं आएंगे आपको। मरीज़े इश्क को खाके शिफा तकसीम करता है, मरीज़े इश्क को खाके शिफा तकसीम करता है, मदीना मेरे आका का दवा तकसीम करता है। यही पे आपको बोलना था, जरा एक बार हाथों को उठाकर बोलिए तो सुभान अल्लाह। शेर सुनते हैं कि नहीं आप? बस शेर सुनते हैं, कुछ देर तक शेर सुन लीजिए, जब शेर सुनने से दिल भर जाएगा तो बता दीजिएगा, वहां से शेर सुनाना बंद करेंगे, शेर दिखाना शुरू करेंगे। यहाँ दोनों मौजूद है, शेर देखना भी आपको है, शेर सुनना भी आपको है। खुला मैदान हो तो हर कोई सकते में रहता है, सब उसको छेड़ते हैं शेर जब पिंजड़े में रहता है। तो ये शेर जिसका नाम दिलबर शाही है, ये अभी पिंजड़े में कैद है और उस वक्त तक कैद रहेगा जब तक हम उसे खोलेंगे, है कि नहीं? और खोलने के लिए आपको बोलना जरूरी है। जरा एक बार मोहब्बत के साथ हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। मरीज़े इश्क को खाके शिफा तकसीम करता है, मदीना मेरे आका का दवा तकसीम करता है। मरीज़े इश्क को खाके शिफा तकसीम करता है, मदीना मेरे आका का दवा तकसीम करता है। और छुड़ाता है बदन जब गर्मियों के सख्त मौसम में, तो नबी का शर ही ठंडी हवा तकसीम करता है। छुड़ाता है बदन जब गर्मियों के सख्त मौसम में, छुड़ाता है बदन जब गर्मियों के सख्त मौसम में। मुझे आखिरी शेर पढ़ना है और देखना है कि इतना अच्छा मजमा है, इतने अच्छे लोग बैठे हुए हैं, वो कौन सा आशिक है जो आला हजरत की मोहब्बत में खड़े होकर नारा लगाता है। बस एक मुझे आशिक चाहिए, लेकिन बैठ जाइए, मुझे आखिरी शेर पढ़ने दीजिए। क्या छुड़ाता है जब गर्मियों के सख्त मौसम में, तो नबी का शेर ही ठंडी हवा तकसीम करता है। मदीने से खजाना इश्क का आता है भारत में, मदीने से खजाना इश्क का आता है भारत में, बरेली से मेरा हमद रजा तकसीम करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हैदर मखदूम अशरफ, हैदर आला हजरत, सरज़मीन फकीर। देखिए हजरत ने मुझे अपनी दुआओं से नवाजा, हजरत ने मुझे अपनी दुआओं से नवाजा। जिंदाबाद। बुजुर्गों की दुआओं का है हाला कम नहीं होता, अंधेरे रो रहे हैं क्यों उजाला कम नहीं होता। ये दरख्त हैं जिनका साया हमें मिल रहा है। एक नौजवान कोई खड़े होकर नारा लगा, एक नौजवान है, कोई नौजवान, इतना शानदार मजमा है, एक नौजवान कोई खड़े होकर नारा लगा दे, हम ये समझेंगे कि पूरे जवाब दे, जवाब दे, सब लोग जवाब दे। अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह, जिंदाबाद।
जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवाब जवाब जरा एक बार जरा अपने हाथों को उठा दो, जरा अपने हाथों को उठा ले, माशाअल्लाह, जरा मोहब्बत के साथ बोले नारे तकबीर। कितना अच्छा लग रहा है, अगर सब लोग मिलकर बोलिएगा तो कितना अच्छा लगेगा, है कि नहीं? तो जरा सब लोग मिलकर बोलिए मेरे भाई, जरा अपने हाथों को उठाए, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, अभी भी आप जबान से बोल रहे हैं मेरे भाई, जबान से मत बोलिए, दिल से बोल के देखिए, जरा हाथों को उठाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नस्र के आला हज़रत फैज़ाने मखदूमे अशरफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आपको जलसे में बैठना है, कोई भी अपनी मर्जी से उठकर जाएगा नहीं, और अगर चला गया, कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। ये भी सुन लीजिएगा, जलसे में आप बैठे हुए हैं भाई, जलसे में बैठे हुए हैं जहाँ अल्लाह का जिक्र हो रहा है, जहाँ नबी का जिक्र जमीर हो रहा है। हजरत बहलोल दाना तो हमेशा कब्रिस्तान में बैठते थे। एक मौके से हारून रशीद बादशाह का गुजर हुआ, तो हारून रशीद के बाद हारून रशीद बादशाह ने कहा हजरत बहलोल दाना से कि आप हमेशा कब्रिस्तान में बैठते हैं, कभी शहर की तरफ तो आइए। तो हजरत बहलोल दाना ने कहा क्या करें शहर जाकर, लोग शहर से इधर ही आ रहे हैं, अगला नहीं पिछला जमाना चाहिए, एक ही दाना मगर बहलोल दाना चाहिए। रास्ता रखा जहाँ के बारे में इकबाल ने कहा था कि मोहब्बत से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हम नात इसलिए नहीं सुनते हैं कि इससे लज्जत हासिल करें, मजा हासिल करें, हम नात इसलिए सुनते हैं कि कभी कभी नात का एक शेर ऐसा होता है जो इंसान को जहन्नम की वादियों से निकालकर जन्नत की वादियों तक पहुंचा देता है। आइए मेरे बहुत अजीज शायर, मेरे बहुत महबूब शायर, मेरे हमअसर शायर, शायर इस्लाम जनाब शाहिद यूसुफी, जिनके साथ मैंने दर्जनों मुशायरे पढ़े, ना जाने कितने जलसे पढ़े, आज उनके शहजादे को देखकर मुझे बेपनाह खुशी हो रही है। और हजरत ईसा फरमाते हैं कि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। जनाब शबाब यूसुफी यहाँ पे मौजूद हैं, संगे मरमर से तराशे हुए हसीन और जमील पैकर का नाम है जनाब शबाब यूसुफी, इसी मिट्टी के पैदावार हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि जिस शायर को पूरा मुल्क अपनी पलकों पर बैठाता है, आप उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं, मुझे एक नारे से अंदाजा लगाना है। जिनके पास एक हाथ है जरा एक हाथ उठा ले, जिनके पास दो हाथ है जरा दोनों हाथों को उठा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हर वज़ू कर लेता है, हर शेर तिलावत करता है, पढ़ता है कोई जब नाते नबी समझो कि इबादत करता है।